राम साहब ने मैसेज किया कि वो थोड़ी देर में लॉग इन होते हैं. Anyway, welcome to the class today on 16th of June. So last time we covered about joins, and I hope you people may have been able to understand joins. The only thing is when you do the practicals, the same practicals as I have done, then you will understand more clearly. And also you will understand the select statements, um, precisely. That was the objective. We covered two things that day. We also covered how to import data from CSV. Using Excel, we can also write insert statements. If we have data in proper format, we can also write insert statements in Excel. And then once we have those insert statements, we can make them as an SQL file, and we can execute that SQL file, and it will load the data into our respective table. Now, we will today try to cover up the export and import of a database. So let us start with that. Let me share the screen, but before that, I will just make the screen display setting bigger so that you people should be able to see it clearly. Okay, now let me share this. So, जिया भाई जी मैंने मतलब एज ए गेस्ट रहते हुए मैंने उसको दोबारा टीम को ना वो किया, उसके आइकॉन से अपलोड किया और फिर उसने कहा कि इमाम ज़माना वांट सेंटर वांट टू एक्सेप्ट यू एज ए मेंबर, इस तरह तो उसको एक्सेप्ट करता गया तो वो अभी खुल गया है वो. ओके, तो आपको वो दिख रहा है? जी अभी दिख रहा है. तो CSV फाइल भी मैंने वो उसको ओपन किया है, तो अब यहाँ से कॉपी करके इसको टेम्प फाइल में पहले डालना, आप अपने फोल्डर्स में रख के आप उसको कर सकते हैं. अच्छा. तो अब आज हम डिस्कस करेंगे कि हम हाउ डू वी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट PostgreSQL database. So remember you all that we have created a database as inventory, and let us see. So we will use pgdump, and this is the command. This is a simple command. This will simply export the database into a separate file. So let us try that. Hope this screen is clear and you people are able to see it clearly. Everything is big enough for you to understand. Zawai, I think your Telegram screen shows right now. Oh no, I'm showing. I'm showing the Telegram. Or is it mine? Maybe yours is waiting for the refresh. It's good. Thanks. Appreciate it. It's all good. So I just checked. Right from the beginning, I have been trying to explain how you people can have an idea of small thing, and then how you can fetch things from internet and then try to understand and how you can use that in your day-to-day life. So this is also what we are doing. So I just typed in here how to export or exporting and importing database in PostgreSQL, and we come to this web page. So here
We see the command is pgdump -u username, and DB name, database name is, so we have to give -u username, and then we have to give database name, and then to, this is actually to means redirect, means send the file or send or export the file or export the database to this file. So this will be the target file or the destination file which we will be making. So what is pgdump? Pgdump is an executable file. It should be here. Let us say it should be how we can search it here. Wait. या टारगेट जो लोकेशन है वो वही नेम होगा जो डायरेक्ट टू करके करेंगे. टारगेट नेम तो कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे इस नेम की जगह मैं अपना नाम लिख सकता हूँ. ओके, और इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर. हाँ, इसको इजी कर दें. हाँ, अब देखते हैं. pgdump पहले यहाँ लिखा pg_dump और फिर -u. तो यूजर जो है हम let us use user Scott, और एक बार ऐसा करते हैं, pgdump के ऑप्शन देखते हैं. pgdump//help. तो pgdump अपने आप में एक कमांड फाइल है और एग्जीक्यूटेबल फाइल है. ये जब हमने PostgreSQL इंस्टॉल किया था उस वक्त ये pgdump फाइल भी इंस्टॉल हुई थी. जब हमने PSQL इंस्टॉल हुई थी उसी वक्त ये भी. अगर हम देखना चाहें कि वो कहाँ है तो हम यहाँ देख सकते हैं. आई थिंक वो प्रोग्राम फाइल्स, एक काम करते हैं इसमें देखते हैं. ने पोस्टग्रेस वो किया है, ये जब इंस्टॉल किया था तो ये जो शेल है इसको हम देखते हैं कि ये मोर ओपन फाइल लोकेशन, तो इसकी लोकेशन यहाँ है. ये शॉर्टकट है. ये है विंडोज स्टार्ट मेनू प्रोग्राम्स. ओके, अब इसके अंदर हम देखें अगर इसकी प्रॉपर्टीज, तो ये शॉर्टकट कहाँ से आ रहा है. प्रोग्राम फाइल्स PSQL 13 स्क्रिप्ट्स रन PSQL bat, और रन PSQL bat फाइल जो है, ये फाइल अगर हम देखें, या एक मिनट वो कहाँ है, बल्कि हम व्यू ना देखें. ये एग्जीक्यूटेबल फाइल से क्या मुराद है, और ये हाँ ठीक है, देखें. ये हम पीसी में गए. पीसी के बाद लोकल डिस्क, दिस पीसी तो आपको पता होगा, ये सी डिस्क, सी ड्राइव के अंदर हम प्रोग्राम फाइल्स में गए. प्रोग्राम फाइल्स के बाद इसमें हमने देखा PostgreSQL है. जब हमने इंस्टॉल किया था तो इसने इस जगह पर एट दिस प्लेस दिस वाज इंस्टॉल्ड. अब फिर उसके अंदर PostgreSQL के अंदर 13 के अंदर ये बिन जो है ना, बिन यानी बाइनरी फाइल्स एक्चुअली. इसके अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारी बाइनरी फाइल्स मिलेंगी. इसमें देखें PSQL कहीं है ये. तो ये जब हम रन कर रहे होते हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ PSQL रन करते हैं तो असल में ये वाली फाइल ही रन होती है. ये जो बिन के अंदर ये फाइल है, ये फाइल रन होती है. यानी असल में ये फाइल, इसकी कमांड ये होनी चाहिए. अगर हम इसमें पाथ वगैरह पूरा दें तो इसकी कमांड ये होनी चाहिए PSQL, मतलब go to C, go to program files and go to PostgreSQL, go to folder 13, go to bin folder and from there run PSQL. अब यहाँ पे हम लिखेंगे -u and -d. -u में यूजर नेम में Scott और -d में इन्वेंट्री. ये हमने लिखा और एंटर किया. बोल रहा है यहाँ पे स्पेस की वजह से ये रन नहीं किया इसने.
में ये यूं होना चाहिए, बल्कि हमें ये यूं नहीं जाना चाहिए, मैं बताता हूँ इसको दूसरे तरीके से। ये जो विंडोज का ये बिन तक जाएंगे, फॉर्मेट, सुने, बिन तक जाएंगे और एंटर करेंगे और उसके बाद देखें ऐसे पकड़ा इसने सी प्रोग्राम फाइल्स। मैंने क्या किया, यहाँ पर कमांड लाइन में C:\/ प्रोग्राम और टैब जैसे ही दबाया इसने उसको एक्सटेंड किया। फिर मैंने इसको लिखा पोस्टग्रेस, फिर मैंने टैब किया 13, फिर टैब किया, वो ऐड होता जा रहा है, फिर बिन किया और उसके बाद PSQL। अब ये रन करेगा, ये पूरी की पूरी एक सिंगल कमांड हुई। अब हम पोस्टग्रेस अब देखते हैं कि ये यूं रन होना चाहिए, -d इन्वेंटरी। अब ये हुआ रन। तो इसमें ये क्या दिया गया इसको कि पूरा का पूरा पाथ दिया इसको और इस एक्जी का नाम दिया कि ये एक्जी जो है PSQL एक्जी यहां पर है और इसको रन करो, यूजर स्कॉट और डेटाबेस इन्वेंटरी। तो अब इसने पासवर्ड मांगा कि पासवर्ड दें। अब हमने पासवर्ड दिया और ये हम कनेक्ट हो गए। तो हम लेकिन क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ PSQL-U-D इन्वेंटरी टाइप कर रहे हैं। तो सॉरी, ये हमने पूरा बीच में स्कॉट छोड़ दिया। अब ये इसने पासवर्ड मांगा और हम कनेक्ट हो गए। सो दिस इज द सेम थिंग एज टाइपिंग दिस। तब जैसे PSQL एक्जी है वैसे ही उस जगह पर PG डंप भी है। देखें PG, ये डंप, PG डंप एक्जी। तो PG डंप एक्जी जो है एप्लीकेशन फाइल है, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल है या बाइनरी फाइल है। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो भी होती हैं ये एग्जीक्यूट करती हैं, रन करती हैं, कंपाइल्ड फाइल होती हैं। तो अब हम बाहर निकलते हैं। PG डंप _dump और -u यूजर में हमने लिखा स्कॉट और डेटाबेस में हमने लिखा इन्वेंटरी और ब्रैकेट में मतलब PG डंप करो। बट वेट, लेट अस सी PG डंप का सिंटैक्स क्या है। क्या क्वेश्चन मार्क, नो सॉरी, लिखा था हेल्प, -help काम करेगा नहीं, डबल -help काम करेगा। तो अलग अलग सिंटैक्स हैं हेल्प लेने के। -d करके डेटाबेस नेम देते हैं, डेटाबेस नेम टू डंप। -u से यूजर नेम देते हैं और फिर उसके बाद सो लेट अस यूज दिस देन। सो PG dump -u स्कॉट -d और डेटाबेस हमारी है इन्वेंटरी और ग्रेटर देन का साइन मींस सेंड टू वेयर। सो हम बोलते हैं इसको तुम SCOTT_inventory या हम बोल दें इसको DB डेटाबेस इन्वेंटरी डॉट EXP या एक्सपोर्ट, या हम बैकअप लिख दें BAK। ओके, हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं इसका, बट बेटर ये होगा कि हम इसके साथ इसका डेट भी लिख दें 2021/16.exp या डॉट एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब ये हमने नाम लिखा, एंटर करते हैं। इसने पासवर्ड मांगा स्कॉट का, ये हमने पासवर्ड दिया, अब ये एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसने एक्सपोर्ट किया। अब हम देखते हैं हम किस जगह पे हैं, सी यूजर ज़िया फोल्डर में। अब हम dir करते हैं तो यहाँ हमें ये फाइल मिलनी चाहिए। ये फाइल मिली DB इन्वेंटरी एक्सपोर्ट नाम से। ये हम लोगों ने पिछली बार किया था, याद है वो 9 तारीख को जब हम क्लास कर रहे थे तब हमने एक्सपोर्ट किया था। उस वक्त इसका साइज इतना था, आज इसका साइज इतना है। क्यों है इसका साइज ज्यादा? क्योंकि हम लोगों ने कुछ टेबल्स बीच में और इसमें ऐड किए थे। तो
अब ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये एक्सपोर्ट हो फाइल गया। हमारे पास हाँ, ये फाइल आ गई एक्सपोर्ट होके। अब हमें इंपोर्ट करना है, तो एक बार फिर से चलते हैं, देखते हैं कि इंपोर्ट के लिए क्या इन्होंने मेंशन किया है। pgdom ये सब उन्होंने बोला कि एरर ऐसे आ सकते हैं। स्क्रीन शेयर कर दो। और ये दूसरा है PHP एडमिन के थ्रू हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये PHP एडमिन जो है ये बाय डिफॉल्ट ये भी इंस्टॉल होता है जब आप यहाँ पर, अगर आप लोगों ने वो दूसरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा ये PG एडमिन 4 इंस्टॉल हुआ है। PG एडमिन से भी डेटाबेस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब कि कैसे इंपोर्ट किया जाए? बिफोर यू कैन इंपोर्ट, you must create a new database in the cPanel and assign a user to it. तो बोल रहा है कि अगर आप इंपोर्ट करने से पहले पोस्टग्रेस में एक नई डेटाबेस बनाएं और एक उसको यूजर असाइन करें। तो इसके लिए इसने क्या बोला कि उसमें भी कमांड यही है, PSQL यूजर नेम, DB नेम और DBPSQL इस तरीके से। तो मैं इसको एक एग्जांपल देता हूं, मैं दूसरी जगह पे इसको करता हूं। ये वाली फाइल को उठा के मैं अपने सर्वर पे डालूंगा। मेरे पास दूसरा एक सर्वर है जिसपे मैं फाइल रन कर रहा होता हूं। तो लेट अस सी, यहाँ पे हम यूजर्स और ये फोल्डर में आ गए और ये वाली फाइल है जो आज हमने बनाई है। इस फाइल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और सर्वर में आज की डेट, ये क्या हुआ, सॉरी ये सी ड्राइव नहीं। सो मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर 2021। तो ये मेरी फाइल है, ये इस वक्त Z ड्राइव पे है। लेट मी कनेक्ट टू दैट। ये मैं अपने दूसरे सर्वर पे आ गया हूँ और यहाँ पर cd izcc मैंने कौन से फोल्डर में फाइल रखी है, izcc ट्रेनिंग। ओके सॉरी, हाँ izcc है और इसके अंदर cd ट्रेनिंग है और यहाँ पे ये फाइल है जून 16 में cd 2021 June 16। सो अगर हम यहाँ लिस्ट देखें तो यहाँ ये फाइल है DB इन्वेंटरी एक्सपोर्ट के नाम से। ओके ये फाइल इस जगह पर है। कुछ समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ? नहीं, ये थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा आपको। नहीं ये आप परेशान ना हो और ये फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि फाइल जो है दूसरे कंप्यूटर पे है और दूसरे कंप्यूटर पे कहाँ पे है, ये इस वाले फोल्डर के अंदर है।
यूजर होम जिया डॉक्स IZCC ट्रेनिंग 2021 जून 16, इसके अंदर ये फाइल है db_inventory_2021 616 एक्सपोर्ट। इस नाम से ये फाइल इस फोल्डर के अंदर है। तो अब अच्छा, हम कैसे चेक करेंगे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे? तो हमें क्या पता कि किस लोकेशन पे जाके स्टोर हुआ है वो? नहीं, तो वो ये आप इस तरीके से आपको इसके लिए ये समझना होगा कि आप कौन से कंप्यूटर पे लेके जा रहे हैं। आपको यूं समझना होगा कि मान लें कि आपके पास 2 कंप्यूटर हैं, आपने ये फाइल एक्सपोर्ट की और इस फाइल को आपने पेन ड्राइव पे कॉपी किया। उसके बाद आप पेन ड्राइव पे यही चीज ले जाके दूसरे कंप्यूटर पे पेस्ट कर दें, या आप पेन ड्राइव से ही इंपोर्ट कर लें। ठीक है, तो यूं कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे PSQL में लॉगिन होता हूँ। Postgres। मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम उसको कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे चेक कर सकते हैं कि अच्छा ये मेरी फाइल यहाँ पे गई है, मैं फिर फौरन नहीं, उसी ये तो जिस फोल्डर में हैं आप, जिस फोल्डर में आप हैं उस फोल्डर में आपने जो कमांड है उसी फोल्डर में वो फाइल जाएगी। मसलन आपने उसमें जैसे लोकेशन यहाँ नहीं है, उसमें आपने आपने कोई जैसे यहाँ लोकेशन नहीं दिया है। ये ये कमांड दी थी ना आपने, जी -g dump -u scott user ID और d inventory database send it to db inventory। ये तो अब ये क्या है, हमने यहाँ पे कोई फोल्डर का नाम तो दिया नहीं, तो ये जी जाएगी कहाँ? जो भी डिफॉल्ट प्रेजेंट फोल्डर है उसमें जाएगी। प्रेजेंट फोल्डर कौन सा है? C users जिया, तो इसी फोल्डर में ये फाइल जाएगी। अगर हम यहाँ लिख दें कि नहीं, इसको C temp में भेजो, ठीक है, C temp में इस नाम से भेजो। अगर हमने ये लिखा तो अब ये C temp में जाके फाइल होगी। तो अब अगर हम यहाँ देखें dir C temp star.exp स्टार के हमें दिखाओ C temp में क्या क्या कौन सी फाइल है जिसका नाम आगे का कुछ भी हो, बीच में डॉट हो, लास्ट में exp और फिर बाद में कुछ भी हो। ये कमांड का तरीका है, dir कमांड है। सो एनीवे, अगर आप इसको विंडोज से देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे C temp में आ गए और ये C temp में ये फाइल दिखाई इसने। अच्छा, इस सी टेम्प पे किस तरह आप आए, जरा दिखाएं दोबारा। ये ऊपर हमने C:temp टाइप किया, आ गए। अच्छा, ये आपने एक फोल्डर बनाया हुआ है? हाँ, सी में एक टेम्प फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें ठीक है, वो फाइल रख दी है। अच्छा, अब उसके बाद मैं जा रहा हूँ दूसरे कंप्यूटर पे। ठीक है, मैं सही है। अब ये दूसरे कंप्यूटर पे मैं लॉगिन हुआ हूँ। इसमें पोस्टग्रेस यूजर आईडी से मैं लॉगिन हुआ। अब मैं इसमें क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस इन्वेंटरी। ओके, ये डेटाबेस क्रिएट होगा यहाँ पे। और अब देखते हैं कि यहाँ पे लिस्ट में क्या क्या है। तो यहाँ एक इन्वेंटरी डेटाबेस है, ये बाकी डेटाबेसेस हैं। और अब ये इन्वेंटरी डेटाबेस इस वक्त खाली है और हमें एक यूजर भी बनाना होगा जो इन्वेंटरी डेटाबेस में लॉगिन कर सके। तो हम बनाते हैं क्रिएट यूजर, हम स्कॉट ही बना देते हैं, स्कॉट। क्रिएट यूजर की कमांड रटी हुई है किसी को? मुझे जो रटी हुई थी वो ओरेकल की कमांड थी, उसमें था क्रिएट यूजर स्कॉट आइडेंटिफाइड बाय, अब ये पासवर्ड था टाइगर मान लें। इस तरीके से हम ओरेकल में लिखते थे तो क्रिएट हो जाता था। यहाँ पे नहीं हुआ। एक बार हम लोग फिर से उसको देख लेते हैं कि क्रिएट यूजर की क्या कमांड है। क्रिएट यूजर इन पोस्टग्रेस, तो PostgreSQL मेरे ख्याल से इसमें ही हो जानी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में। सो ये बोल रहा है क्रिएट यूजर नेम विद
और लॉगिन। हम लोगों ने याद है वो एक बार देखा था क्रिएट यूजर और उसमें 2 ऑप्शन थे। एनीवे सो पासवर्ड बीच में कमांड होगी पासवर्ड और पासवर्ड क्रिएट यूजर। अच्छा, इसमें अल्टर रोल यूजर नेम विद पासवर्ड। वो तो रोल का था। क्रिएट यूजर स्कॉट पासवर्ड ठीक है, ये क्रिएट हो गया। ग्रांट ऑल, अब हमें इसको ग्रांट देना है। ग्रांट ऑल परमिशंस। ग्रांट स्टार। ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन नहीं, ऑल tables in schema public to Scott. ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस होगा। Grant all privilege on इन्वेंटरी on database. Let's see, school टू स्कॉट। grant तो आपको ये दिख रहा है ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस on इन्वेंटरी टू स्कॉट। ठीक है, INVENTORY 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 privileges on database on database और database का name to Scott. on database और database name to इनको उसके अंदर तो नहीं रखना है हमें। सॉरी नहीं इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं है। इन्वेंटरी टू स्कॉट। ठीक है, सो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन डेटाबेस टू स्कॉट ग्रांट हो गया। अब हम देखते हैं कि हम स्कॉट से एंटर हो सकते हैं कि नहीं। तो PSQL-U स्कॉट -D inventory database inventory does not inventory TORY। तो ये हम लॉगिन हो गए। इसने यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगा मुझसे क्योंकि मैंने इसमें जो मैं सर्वर पे ही हूँ और सर्वर पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है कि पासवर्ड की जरूरत नहीं है। अब अगर हम इसमें देखें डिटेल्स तो इसको कोई डेटाबेस कोई टेबल यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये इन्वेंटरी के अंदर है लेकिन ये दूसरे कंप्यूटर पे है या दूसरे डेटाबेस सर्वर पे हैं जहां पे हमने इस डेटाबेस को बस बनाया है। अब हमें इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये इस फोल्डर में ही है फाइल C यूजर होम इसके अंदर और ये पूरी फाइल नेम है। ठीक है, सो हम यहाँ पे PG_ how to import यहाँ क्या है PSQL-U, यहाँ PSQL हमें टाइप करना है। तो PSQL-U यूजर नेम और उसके बाद DB नेम और हमें ये इंपोर्ट की यानी डायरेक्शन देख रहे हैं, ये डायरेक्शन इस तरफ है कि इधर भेजो और दूसरा डायरेक्शन था ग्रेटर देन का मतलब आउटसाइड और ये इनसाइड का डायरेक्शन है यानी अंदर उठाओ। सो ये कमांड हमें टाइप करनी है। Let us type PSQL-U Scott और -D database inventory और ये डायरेक्शनल साइन और यहाँ पे DB inventory, ये पूरी फाइल नेम आ गई है। ये समझ में आया PSQL-U Scott -D इन्वेंटरी और ये इस तरफ का साइन के इनसाइड साइन या इंपोर्ट का साइन और फिर DB इन्वेंटरी, ये फाइल नेम हमने दे दिया और अब हम इसको एंटर करते हैं तो ये इसने इंपोर्ट किया। ठीक है, अब हम ये इसने क्या किया पूरे के पूरे टेबल इसने बनाए
सेट किया, कॉन्फ़िग सेट किया और ये अल्टर टेबल किया, रिकॉर्ड्स कॉपी किए और वैल्यू उठा ली। अब हम PSQL-U scott-d इन्वेंटरी करके अंदर जाते हैं। Zavai, जी, sorry, quick question. You drop the file from, because this seems like a Linux server. You drop it from Windows Server, right? yes. So I mean, I dropped a file from my Windows server to a Unix server, and inside that Unix server, I logged in using this SSH login command, and now I am inside a Unix server. So I've already installed PostgreSQL on my Unix computer. So there, what I did is I created this user and I created the database. So that was a blank database, empty database. And after I did all that, then I put this command. So when I put this command, it imported all the things from, this command. PSQL-U scott-d inventory and backs and this thing less than sign, and then the file name from which the data needs to be imported. got right? it. Yeah, thanks. It has imported all the things into this database now. So right now I'm on my Unix server, which is running PostgreSQL, and inside that I have that all tables imported. If I say select star from EMP, here I have all the tables here. Select star from departments and select star. So वो इमरान भाई ने अभी कहानी बताई थी कि somebody newbie joined a company and he gave this select star from some file, which is a very big file and which has made the server go busy, and everybody means the other work got stuck. ये हमने आइटम्स के जो टेबल बनाए थे वो सब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आपने PSQL यहाँ पे भी इंस्टॉल किया हुआ था? PSQL नहीं, हमने यहाँ पोस्टग्रेस इंस्टॉल किया हुआ था। अच्छा, और ये आपने जो डेटाबेस है, ये कौन पूरा इन्वेंटरी जो है ये यहाँ पे माइग्रेट किया है? हाँ, हमने पहले एक्सपोर्ट किया और उसके बाद PSQL से इसको इंपोर्ट कर लिया। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं। एक और काम हम लोग करते हैं कि हमने ये एक्सपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ, बाहर आ गए हम एक काम करते हैं, इस चीज को हम अपने इस जगह पर PSQL-U scott-d इन्वेंटरी, या एक काम करते हैं, हम इसको पोस्टग्रेस से जाते हैं, पोस्टग्रेस और एडमिन। अब मैं पोस्टग्रेस डेटाबेस में हूं। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट देखूं तो यहाँ पर इन्वेंटरी टेबल है, ओके। सो इन्वेंटरी डेटाबेस है, सॉरी। और इस डेटाबेस में सारे के सारे डिटेल्स हैं। इफ आई चेंज, हाउ डू आई चेंज द डेटाबेस? This do. So \c inventory, and I gave the inventory name. Now I'm connected to inventory database. Okay. Now I see \d, so I have all the details, all the tables inside the inventory. If I say \connect Postgres, so I'm now connected to Postgres. Now let us drop this database. Drop database inventory. Low.
डेटाबेस ड्रॉप हो गया, यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो हमने जितना काम किया था अब तक डेटाबेस में, टेबल बनाए थे, वो ट्रिगर्स बनाए थे और सब डाटा एंट्री की थी, all are gone, correct? So let us create database here again. So we say create database inventory. Enter. बड़ी देर लगा रहा है। ओके, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ, सॉरी, एल से डेटाबेस ये है। अब हम इसको यहाँ देखते हैं कि इसमें एक्सेस वगैरह कुछ नहीं है, तो हम देखते हैं कि लेट अस गिव एक्सेस टू स्कॉट। सो ग्रांट all privileges to database inventory to Scott. ठीक है? Okay. Now let us log in with Scott here. So psql-u Scott-d inventory. टाइगर। अब हम अगर इसमें देखें कोई इसमें डेटा या कोई टेबल नहीं है, ये ब्लैंक इन्वेंट्री है, ब्लैंक डेटा है। हमारे पास वो जो फाइल थी वो कहाँ थी जो एक्सपोर्ट की थी, ये है, ये वाली फाइल है। ये कहाँ पर है? सी यूजर जिया के अंदर है, हम यहीं पर हैं फिलहाल। सो हम टाइप करते हैं इंपोर्ट करने के लिए psql-u Scott-d inventory और डायरेक्शन। अब हम यहाँ कमांड का नाम लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे db_inventory 2021/6/16 एक्सपोर्ट। ये जो हमने एक्सपोर्ट की थी फाइल अपनी, हम उसी फाइल से अब हम इसमें वापस इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये इसने पासवर्ड मांगा और ये सारी चीजें आ गई। अब हम psql-u Scott-d inventory करते हैं और लिखते हैं टाइगर। और अब हम देखें तो फिर से आ गए सारे टेबल हमारे पास, सारा डेटा आ गया। कोई सवाल? ये आपने यूनिक्स में एक्सपोर्ट किया था ना पहले? वो तो मैंने दिखाया था पहले दूसरे कंप्यूटर पे करके, तो वो एक्सपोर्ट किया था ना आपने पहले? हाँ, वो मैंने वहां किया था, लेकिन अब मैंने इसको इसी कंप्यूटर पे किया ना। अच्छा, अपने ही कंप्यूटर पे। पहले मैंने क्या किया कि पहले तो फाइल से डेटा एक्सपोर्ट कर लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, मैं इस डेटाबेस में सुपर यूजर के थ्रू गया। मतलब सुपर यूजर जो है वो पोस्टग्रेस है, तो पोस्टग्रेस के यूजर के थ्रू मैं लॉगिन हुआ। मैंने वो डेटाबेस को ड्रॉप किया, इन्वेंटरी डेटाबेस को ड्रॉप कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। डेटाबेस अब नहीं है, अब सारा रिकॉर्ड उसका खत्म हो गया, ठीक है, सारी चीजें उसकी डिलीट हो गई। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि उसी इन्वेंटरी डेटाबेस को क्रिएट किया, एक न्यू डेटाबेस। अब ये नया डेटाबेस बना इन्वेंटरी के नाम से, इसको क्रिएट किया और इसमें फिर से स्कॉट को इसमें एक्सेस दी, प्रिविलेजेस दी, और फिर मैंने स्कॉट की कमांड रन की psql इंपोर्ट करने के लिए। ये जो हम लोगों ने कमांड यहाँ देखी है, यहाँ इसने -d नहीं मेंशन किया है, मुझे ये ताज्जुब लग रहा है। तो पता नहीं ये बिना उसके चलेगा या नहीं चलेगा, बट अगर आप गौर करें तो इसने यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, psql-u यूजर नेम और फिर हम लोगों ने -d और फिर डेटाबेस नेम दिया है और फिर ये इंपोर्ट फ्रॉम कौन सी फाइल का नाम है वो हमने अपनी फाइल का नाम दिया और ये इंपोर्ट हो गया डेटा। तो इस तरीके से हमने डेटा इंपोर्ट किया।
तो आपने एक्सपोर्ट उसको यूनिक्स सर्वर पे किया था पहले कहाँ किया था? मैंने दोनों चीजें दिखाई आपको। मैंने क्या किया, पहले एक्सपोर्ट किया। आप एक काम कीजिएगा कि पहले ये वीडियो को अगर आप ध्यान से फिर से देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या किया। पहले एक्सपोर्ट किया, एक फाइल बन गई। उस फाइल को फिर मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने इसी डेटाबेस पे, इसी कंप्यूटर पे नहीं किया, क्योंकि आई वाज नॉट श्योर कि इफ दिस इज गोइंग टू वर्क on this particular computer or not, and I don't wanted to drop my database. I don't wanted to land up in trouble. So what I did is मैं उसको दूसरे कंप्यूटर पे ले गया। दूसरे कंप्यूटर पे मेरे पोस्टग्रेस रन हो रहा है, उस कंप्यूटर पे मैंने उसको इंस्टॉल किया, वो डेटाबेस क्रिएट किया, यूजर क्रिएट किया, यूजर को एक्सेस दी डेटाबेस में, और फिर उसके बाद इंपोर्ट की कमांड एग्जीक्यूट की। तो वो वहां इंपोर्ट हुआ, हमने देखा कि वो सारी टेबल्स और एवरीथिंग केम अप देयर। देन व्हाट आई डिड इज आफ्टर कंफर्मेशन I came back to this computer जिस पे मैंने PostgreSQL इंस्टॉल किया हुआ है। इस कंप्यूटर पे आके फिर मैं इसके अपने Postgre सर्वर में गया और उसमें जाके मैंने इन्वेंट्री टेबल पूरे डेटाबेस को ही ड्रॉप किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो था पहले से हमारे पास, आप लोगों के कंप्यूटर में भी होगा। तो अगर आपने बाय मिस्टेक या जो भी है डेटाबेस को ड्रॉप किया, या कोई ऐसी गलती हो गई है कि जो अनरिकवरेबल है, लेकिन अगर आपके पास बैकअप किया हुआ है एक रात पहले का या एक दिन पहले का, तो उस बैकअप से आप इस पूरे के पूरे डेटाबेस को रिस्टोर, फिर से हमने डेटाबेस बनाया और उसमें ग्रांट दिया यूजर को, स्कॉट को, और फिर हमने डेटाबेस को इंपोर्ट कर लिया। तो ये पूरा का पूरा डेटाबेस वापस यहाँ पे। तो हम अगर मैं इसे प्रैक्टिस के लिए घर पे करूं तो हाँ, अगर मैं दूसरे लैपटॉप पे किस तरह से करूंगा? दूसरे लैपटॉप पे भी आप यही करेंगे कि आप उसमें PostgreSQL इंस्टॉल कीजिए, ये फाइल उसमें लेके जाइए और उसमें इंपोर्ट करके देख लीजिए। ठीक है, तो उसको पाथ कैसे देते हैं कि वो जब मैं वहां से इसको इंपोर्ट करूं? तो वो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आप जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं वहां पर आपको पाथ देना है। मसलन अगर मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह पे हूँ, सी रूट में हूँ, ठीक है। अब मुझे इंपोर्ट करना है डेटाबेस, तो मैं PSQL टाइप करूँ -u, और मैंने स्कॉट टाइप किया और -d इन्वेंट्री टाइप किया, और अब फिर मैंने यहाँ पे एरो दिया और फिर बोला कि सी में जाओ, यूजर में जाओ, और ज़ेया फोल्डर में जाओ, और db_ इन्वेंट्री ये फाइल लो। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल का पूरा वो पाथ दिया ना। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे ये फाइल हम सी में है इस वक्त, और सी में ये फाइल अवेलेबल ही नहीं है, तो हमें बताना होगा ना कि कौन सी फाइल से इंपोर्ट करना है। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो अब ये क्या करेगा, ये इसने बोला कि एरर, अब की बार नहीं किया, बोला कि ये एरर है क्योंकि ये फाइल्स ये चीजें पहले से ही हैं, डुप्लीकेट हैं, इसलिए। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा शक है कि हम 2 बार अगर करते हैं, तो अगर हमने कंस्ट्रेंट्स वगैरह नहीं लगाए हैं, तो ऐसा ना हो कि डाटा डबल हो जाए अगर हमने दोबारा उसको किया तो। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं जब प्रैक्टिस के लिए दूसरे लैपटॉप पे जाऊंगा, तो वहां से जब वहां जाके पहले फिर मैं इंपोर्ट करूंगा ना अपने कंप्यूटर का डाटा वहां इन्वेंट्री, तो वो कैसे करूंगा? उसको पाथ कैसे दूंगा दूसरे कंप्यूटर से? क्या हुआ अगर मैंने दूसरी बार जब रन किया तो क्या हुआ, ये यहाँ पर अगर हम एम्प्लॉइज को देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो EMP टेबल में क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाए थे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स यहाँ पे ले सकता था, तो इसने सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स 2 टाइम्स ले लिए। आखिरी रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे ये था, ये था।
अब उसके बाद स्मिथ फिर से आया, तो उसने फिर से ये सारे रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो गए, इंपोर्ट हो गए। तो इसमें थोड़ा सा तवज्जो देने की ये जरूरत है कि Is it me or is it actually silent here? वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। I think he's talking, but he has something wrong with his microphone. ये भी मैसेज आया था, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। Okay. तो कह रहे हैं कि रीबूटिंग द कंप्यूटर। तो इकराम भाई, आपको पता है कि जैसे मैं दूसरे कंप्यूटर पे हूँ, तो वहां से मैं कैसे एक नेटवर्क पे आके उसको कैसे देखूंगा कि भाई वहां पे फाइल पड़ी हुई है, वहां से इंपोर्ट करना है? सर, आप दूसरे कंप्यूटर पे नहीं देखेंगे, आप बेसिकली फाइल को इंपोर्ट करेंगे, मैनुअली कॉपी करके अपने लोकल कंप्यूटर पे लाएंगे। तो कैसे होता है, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि जैसे लिनक्स बॉक्स है तो उसमें आप SFTP यूज कर सकते हैं, उसके अंदर आप SCP यूज कर सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी डिवाइस जैसे विनजिप वगैरह होता है, विनजिप कह रहा हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं दूसरे WinCP कंप्यूटर से अहमद के उससे आया हूँ। फिर से मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया था, सो देयर वाज अ प्रॉब्लम। अच्छा, निकालो ना स्पीकर। और इसके अलावा WinSCP भी एक टूल है, उसको यूज करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं फाइल। अच्छा, वो मुझे आता नहीं है ये सारे प्रोसेस। वो नो प्रॉब्लम, वो हाँ लिनक्स है, वो तो मतलब ये है कि नहीं, वो लिनक्स के लिए आप परेशान ना हो, वो अलग सिस्टम है, वो अलग चीज है। हमारा जी बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमने डेटा एक्सपोर्ट किया और हमने डेटा इंपोर्ट किया। जी ये मैं दूसरे कंप्यूटर पे हूँ, मेरा कंप्यूटर रिबूट हो गया है, और वो रिबूट इसलिए हो गया कि वो नीचे तार में पैर लगा और वो स्विच ऑफ हो गया पूरा। तो वो स्विच ऑन किया, अब वो बोल रहा है कि अपडेट करना है सिस्टम। सो आई डोंट नो, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, बट एनीवे हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट जो था वो हो गया है। हमें एक्सपोर्ट करना था, इंपोर्ट करना था, दूसरे उस पे हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, और इसी कंप्यूटर पे भी हम लोगों ने इंपोर्ट किया। तो आप लोगों ने वो देखा। इफ यू वांट टू सी, यू कैन ट्राई डूइंग दिस। और मैं एक और काम करूंगा कि इस पूरे जो भी हम लोगों ने किया है, इसको कमांड्स को वहां पे मेंशन कर दूंगा इसके विकी में। hope you people are able to see the wiki on this new teams. So let us close this for today, and then we will plan later on. कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल यहाँ पर? Yeah, Zeba, I have a question. Yeah. When we import or make a copy of the database, technically we're not copying the database, we're just copying the tables, because we still have to create an empty database to put the tables back in there, right? Right. Okay. Just want to make sure, because I thought if you're No, copying, if you are importing in this way using PSQL, if you open that file, the database file which we have exported, that file has commands
which you can understand, which you can see. It has the create table command, it has insert into commands, and all those commands are there. So you have to be sure what you're doing. If you're going to do it on an existing tables or existing database, it may end up spoiling your database also. So it is best to create a new database and import the data, whatever have been exported, to a new database, so that you're sure what you're doing. Otherwise, this will spoil the present database and add up double records. Is it possible to export partial database like a... Yes, Imran bhai. जी मैं ये कहता कि is it possible to export part of the database, few tables? बाकी लोग अगर close कर लें, mute कर दें, let Imran bhai only talk. Yes. Yeah, so मैं कह रहा था कि is it possible to copy the partial database? Let's say if I want to copy just few tables. When you said partial database, what do you mean? What I mean, if let's say we have 5 tables in the database, right? Right? You just want to copy or paste one particular table. Yes, only. Exactly, yeah. That also will be possible. You just need to, mention or maybe, just edit that file, which file we have exported. If you edit that file and remove all other commands and only keep the commands related to that particular table, then it should come. Okay. All right. Thank you. So let's wind up for today. जिया भाई एक क्वेश्चन है. हाँ बोले. इसलिए कि मुझे नेटवर्किंग का इतना नहीं आता है, तो मुझे अगर मैं दूसरे लैपटॉप पे ये सारा कुछ PSQL क्रिएट करूं, डेटाबेस करूं, तो मैं अगर एक डेटाबेस की सिर्फ कॉपी एक्सपोर्ट करूं वहां पे, हाँ तो आप ऐसे ही करें. बजाय तो हम लोगों ने आज यही तो किया है. हम लोगों ने क्या किया कि पहले एक्सपोर्ट कर लिया और दूसरे कंप्यूटर पे जाके उसमें हमने PSQL, उसमें हमने डेटाबेस क्रिएट किया, उसमें हमने यूजर क्रिएट किया, ग्रांट दिया उस यूजर को उस डेटाबेस पे, और फिर उसके बाद हमने PSQL कमांड रन की और वो इंपोर्ट फाइल को उसमें मेंशन कर दिया. सो देन इट हैज इंपोर्टेड ऑल द tables into another computer. So similarly you can do on another laptop. Yes, and I would suggest you should do that. कि एक कंप्यूटर आप दूसरे कंप्यूटर पे PostgreSQL इंस्टॉल करें और उस पे ये सारी चीजें रन करके और यहाँ से डेटाबेस उस पे इंपोर्ट करके देखें कि आप अगर मैं ये जब इंपोर्ट करूंगा तो वो होल कॉपी चला जाएगा या सिर्फ एक कॉपी जाएगी? मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ कि अपने यहाँ पे भी रखूं और सिर्फ जैसे एक कॉपी वहां भी चली जाए, एक और जो मास्टर इन्वेंटरी है वो इधर रहे. नहीं मैं समझा नहीं फिर भी आपकी बात. जैसे कि मैं इसकी सिर्फ एक कॉपी भेजना चाह रहा हूँ, इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ या एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ. जब आप ये करिएगा तो ये सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा. तो इधर भी कॉपी होगी, उधर भी कॉपी होगी. हाँ, दो अलग अलग चीजें हो गई ना, दो अलग अलग कंप्यूटर्स पे हो गया. तो ऐसा तो नहीं जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो यहाँ से खाली हो जाएगा बिल्कुल, जैसे आपने कहा था यहाँ पे अभी कुछ नहीं है. नहीं, वो तो मैंने जब डिलीट किया तब कुछ नहीं हुआ. अच्छा, उससे पहले रहेगा. अगर आप एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ से खाली करना नहीं है. एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पे सारा डाटा यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद जब हम इंपोर्ट करते हैं तो दूसरी जगह पे वो इंपोर्ट हो जाएगा, दूसरी जगह पे वो डाटा पहुंच जाएगा. तो यहाँ से खत्म नहीं होगा डाटा, यहाँ की बस कॉपी वहां पहुंचेगी. इस पे भी होगा और उस पे भी होगा. तो उसका पाथ जरा बता देंगे वो मेरे ख्याल से आप इसको देखिएगा और आप ये वीडियो को फिर से देख के जब कीजिएगा ना तो आपको ये समझ में आएगा. ये चीज ये समझ गया मैं, लेकिन मैं अपना पाथ कैसे डिफाइन करूंगा? वो भी समझ में आएगा आपको. पाथ वगैरह, पाथ डिफाइन मतलब यानी कि सेकंड लैपटॉप का पाथ कैसे मैं उसको बताऊंगा कि हाँ यहाँ पे मेरा डाटा एक्सपोर्ट कर दो. वो अभी उसको एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाया था ना कि हम अगर C प्रॉम्प्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमने PSQL टाइप किया और फिर लास्ट में वो फाइल का नाम, उसके आगे पूरा पाथ लिखा कि वो फाइल कहाँ पर है. जी, तो वैसे ही करना है उसमें. पाथ जैसे आप टेम्प फाइल में गए, हाँ, तब मैं अपना तो देख सकता हूँ, लेकिन उसका कैसे देखूंगा दूसरे लोकेशन का?
जब आप पहले एक्सपोर्ट तो कीजिए, दूसरी जगह पहुंचाइए, तो ये मसला आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको करेंगे। जब तक करेंगे नहीं ना, वर्बली बोलने से मैं नहीं समझा पाऊंगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपकी समझ में आएगा। जब अटकेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे, फिर आपकी समझ में आना शुरू होगा कि ये क्या मतलब है इसका और क्या है बात का मतलब। सही है, ठीक है, तो इसको जरूर कीजिए ताकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको समझ में आए, और बाकी दूसरे प्रोसेस को फिर देखते हैं। एंड लेट अस सी, आई थिंक हम लोग काफी हद तक कवर कर चुके हैं जो टॉपिक्स हमें कवर करने थे, और अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया है एक ब्रेक लेने का थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम इसको इसी चीज़ों को MySQL पे करके देखें और फिर ओरेकल पे करके देखें। आप लोग का क्या कहना है कि हम लोग पहले ओरेकल करें या पहले MySQL करें? जो सबसे यानी अच्छा है उस पे टाइम लगा है। अच्छे बुरे की चीज नहीं है, अच्छे बुरे का मसला नहीं है। यस, ओरेकल ही कर लें डायरेक्ट। MySQL, SW Syed, you are saying MySQL. Okay, anyway, we will do one thing. We will put this up on to our Telegram messenger also, and we will discuss it there further, inshallah. Sayyid Hassan. Yes, yes, Wahid. Long time no see. I think the last session you supposed to upload those joints variations. I have done it. Wahid, can you see the table and everything in this Teams? I have added you there also. Oh, wait, no, I have not added you. You just send me your email address and I will add you, and then you will be able to see. This is another Teams actually. That earlier the Teams which I used to use was on my personal ID. Now this team is on Imam-e-Zamana Center's ID. On Imam-e-Zamana Center's email ID. So this is a different Teams. So I will add you up there, and then you should be able to see it on this Teams. Okay. Okay, I send you in Telegram. Yeah, I will. Yeah, send me directly on my personal ID on Telegram, and I will add you up. My computer is actually updating, so just give me a second. I will go there, start Teams once again, and I will close this video session. Okay, thank you. Okay. Thank you, Zia bhai. Assalamu alaikum ji. Allah Hafiz. Thank you, sir. Good Hafiz.